Good morning to all of you. We are starting a new topic, that is registration of business unit. When we about previously topics, so we have to discuss a lots of topic like various type of business ownership, how to start a business unit, launching a business unit, right? So this topic we have to discuss the registration process. Okay, which kind of registration process are required the business unit, what's the nature of the particular business, so that you have to opt the particular registration process. Okay, so now we move on the next slide. What's the registration of the business unit? Okay, so starting a business in India is not a fairy tale story. Okay, when we start a business, when the entrepreneur start a business, there is a lots of efforts, there's a lots of difficulties is faced, because he bear the lots of risk. He put a lots of skill to start to do the business. Okay, but the nation has made tremendous progress in the recent day, but जो इंडिया है उसने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है in recent days में, and made starting a business very easy for the entrepreneur के लिए business start करना it means कि बहुत easy रह गया, मतलब किसी registration process में आना कि registrations को करना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम business तब तक start नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको registered ना करा लें. कुछ हमने जो various form of business owners उसमें पढ़े थे, उसमें कुछ forms ऐसे थे जिसमें registration का उतना ज़्यादा legal entities की उतनी ज़्यादा requirement नहीं थी. ठीक है, so today we will look at the most commonly referred to register license and the registration required for the business in India. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि which type of किस तरीके के आपके कॉमन लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए, कौन कौन से आपके रजिस्ट्रेशंस होते हैं और कौन कौन से किस तरीके की आपके लाइसेंसिंग होते हैं, जो कि आप जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपके रिक्वायर्ड रहते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, right? So the process of obtaining license change from one type of business to the other based on the various determining factor like the number of employee, sector, the type of the business, the place of the business, etc. Yeah, because the nature of the business are different when you are doing the business. So which type of activity you are doing, okay, so that is depend on your business कि आप business में किस तरीके की activity कर रहे हो, आपका business किस तरीके की का है, so that you have to opt the various kind of business structure like we have to discuss in previous chapter like आप sole proprietor में जाओगे तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, आप किस तरीके के आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, आपने किस तरीके कौन सा प्लेस आपने चूज कर रखा है, आपका बिजनेस ह्यूज है कि आप लेस अमाउंट में आपके कैपिटल में स्टार्ट करते हो, तो लाइसेंसिंग भी आपके उसी तरीके से डिपेंड करता है. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो सो दैट कि आपको इतना ज़्यादा लीगल एंटिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू सोल प्रोप्राइटर, सारी चीज़ें आपको खुद से ही मैनेज करनी है. ठीक है, आपको इतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप ही सारे डिसीजन ले रहे हो, आपको इतना मैनेजमेंट एबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो we look at the some of the most commonly obtained license from the registration of the business to determine the exact requirement for your business. Okay, so now we move on the next slide, the company or LLP registration. The company or LLP registration, we see that the most businesses in India started as proprietorship or partnership firm, right, without any registration from the central government. बहुत सारे आपके बिजनेस जो इंडिया में ऐसे स्टार्ट होते हैं, जैसे आपका प्रोप्राइटरशिप होता है, जैसे मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप और द पार्टनरशिप फर्म. जैसे सोल प्रोप्राइटर की हम बात करें जिसमें एक इंडिविजुअल ही वन मैन आर्मी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही सारे डिसीजन लेता है, उसका ही बिजनेस होता है, वही रिस्क इन्वॉल्व करता है, वही रिस्क लेता है, वो अपनी स्किल को पुट करता है और उसका जो रिवॉर्ड होता है चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उसका बेयरेंस वो खुद ही करता है. ठीक है, ऐसे ही आपके जो प्रोप्राइटरशिप्स होते हैं और पार्टनरशिप फर्म हो गए, तो पार्टनरशिप में भी आप एक बंदा ले सकते हो या आपके 2 पर्सन्स हो गए, सो दैट कैन बी स्टार्ट अ बिजनेस. तो इसमें आपके क्या रहता है, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. Okay, the Ministry of Corporate Affairs regulate the registration of the company and LLP.
Okay, it is advisable for the entrepreneur who have planned for operating a business with an annual turnover of more than 20 lakhs to obtain a LLP or company registration. क्लियर. अभी कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है कि आप जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, कंपनी को रजिस्टर्ड जब आप कराते हो, तो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ सेपरेट एंटिटी. कंपनी के कोई हाथ पांव नहीं होते. क्लियर. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो आपका जो टर्नओवर होता है वो आपका 20 लाख तक होना चाहिए. ओके. और कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो कंपनी के रिगार्डिंग हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें करना पड़ता है. क्लियर. वंस अ कंपनी और LLP इज रजिस्टर्ड, द एंटिटी वुड हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, legal identity, and the promoter would enjoy the limited liability protection. Clear है. The person would also become easily transferable and the entity would have perpetual existence. Hence, before starting a business, it's best to consult an expert and registered a company or LLP. क्लियर. अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, जैसे हम बात कर रहे थे जब सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो हमें उसमें क्या करना था, हमें उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था. बट अगर हम कंपनी की बात करते हैं, किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की हम बात करते हैं, तो कंपनी को हमें रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट रहती है. क्लियर. कंपनी को जब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, जब तक हम कोई भी बिजनेस हम अपना स्टार्ट नहीं कर सकते. आगे देखते हैं. कंपनी के बाद हमें किस चीज की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें GST रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ऑल टाइप ऑफ एंटिटी एंड द इंडिविजुअल, किसी भी तरीके की आपकी एंटिटीज हो, कोई भी आप इंडिविजुअल हो, कोई भी आप बिजनेस ओनर हो, आप चाहे पर्टिकुलर कोई ग्रोसरी क्यों ना हो, अगर आपका एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 lakhs इन मोस्ट स्टेट इज ₹10 lakhs है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन GST रजिस्ट्रेशन. सारे आपके टैक्सेस आपको बहुत अच्छे से पता है. यू स्टूडेंट्स आर वेरी वेल नोन दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ GST. सो अगर, क्योंकि मैम ने भी बहुत ज्यादा GST पे आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, तो और इवन आप अपने जनरल में भी GST जानते हो, कि सो दैट कि कोई भी आपका इंडिविजुअल हो या आपका बिजनेस ओनर हो या बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, कोई वो एंटरप्रेन्योर हो जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसे GST रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. फर्दर, एनी पर्सन supplying the good involved in intra-state supplying in the requirement to obtain GST registration irrespective of the turnover. Okay. So in addition to the above criteria, various other criteria has been provided under the GST Act establishing the criteria for the GST registration. It is very much important for all the entrepreneur to understand the criteria and obtain the GST registration within the 30 days of starting a business. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप ह्यूज राउंड पे आप अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो कंपनी के लिए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. क्लियर. क्योंकि जब तक आपका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, आप किस तरीके से IPO लॉन्च करोगे या किस तरीके से आप लोगों को शेयर करके आप फंड रेज करोगे, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है. फिर आपका दूसरा रजिस्ट्रेशन आता है आपका GST रजिस्ट्रेशन. क्योंकि आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि आपके जो सारे अदर टैक्सेस होते हैं वो सारे एक GST रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर दिए गए हैं. सो यू हैव टू वेरी मच रिक्वायर्ड अबाउट द GST रजिस्ट्रेशन. फिर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन. अब ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन क्या है? दिस इज अ रजिस्ट्रेशन अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर हु वांट टू स्टार्ट एंड ऑपरेट ए स्मॉल बिजनेस. कोई भी अगर स्मॉल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, लाइक अ माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज, सो दे हैव टू नीड टू रिक्वायर्ड टू उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन. Clear. The eligibility criteria for obtaining Udyog Aadhaar registration is based on the investment in the plant and the machinery made by a manufacturing concern or investment in equipment made by the services provider. Right. Once Udyog Aadhaar registration is obtained
for a business, it can enjoy the various subsidiaries and schemes especially provided by the government for the helping small business in India. जैसे आप कोई entrepreneur हो और एक business स्टार्ट कर रहे हो, so like आपने अगर ट्रेनिंग ली, जैसे मैंने आपको entrepreneur ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीजें बताई थी, तो आपको अगर इफ यू रिमेम्बर राइट, तो मैंने आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी उसमें आपको क्लियर किया था कि अगर आप वेरियस टाइप के स्कीम्स में इन्वॉल्व होते हो, अगर जब आप ट्रेनिंग लेते हो किसी, आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बताते हैं, तो उसमें आपका क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उसमें औद्योगिक आधार रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो, जो कि ये क्या रहते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए रहते हैं। विलेजेस में जो आप जिस तरीके की आप स्मॉल एंटरप्राइज ओपन करते हो उसमें रहते हैं, तो इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स लॉन्च होती है, जो डिफरेंट टाइप की सब्सिडरी प्रोवाइड होती है, वो सारी चीजें भी आपको मिल सकती हैं। क्लियर? नाउ FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अब FSSAI लाइसेंस क्या होता है, तो दैट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये जो आपकी होती है, ये आपकी होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई थिंक सो कि ये तो रजिस्ट्रेशन आपको करानी है कि आप जो सेल आउट करने वाले हो उसका फूड की क्वालिटी आपकी कैसी है, आप सेफ्टी पर्पज से आप सेल आउट कर रहे हो कि नहीं, जो कस्टमर आपसे परचेज कर रहे हैं। सो दैट इज डिपेंड ऑन यू कि आपके पास अगर वो वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा, सो यू हैव टू प्रूव दैट कि आप उस प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये आपको क्या बता रहा है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई द सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट नेशनल वाइड। ओके, कि आपके जो फूड है वो आपका कितना स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी का है। लाइक आपका रिटेल स्टोर हो गया, तो जो जितने रिटेल स्टोर बिजनेसेस रन कर रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट्स हो गया, आपके मॉडर्न ट्रेड आपके आउटलेट्स हो गए, तो इन सभी को क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट होता है आपके किस चीज का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन की। ओके, अंडर द FSSAI द लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। लाइक आपका FSSAI सेंट्रल लाइसेंसिंग, FSSAI स्टेट लाइसेंसिंग और FSSAI स्टेट रजिस्ट्रेशन। सो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्लियर? अभी नाउ वी मूव ऑन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर आप किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आप इन्वॉल्व हो, एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया मस्ट ऑब्टेन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ओके, विदाउट इसके आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना जो प्रोडक्ट है या आप अपने जो माल की डिलीवरी है वो आप ना ही इंपोर्ट कर सकते हो ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, आप बाहर आउटसाइड आप करते हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया आप अपना माल सप्लाई करते हो, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, सो दैट यू हैव टू वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट registration import export code. Okay, it is a mandatory for the business to have a PAN and the current account of the bank. It means कि आपको, वैसे तो हर एक बिजनेस में आपका करंट अकाउंट होना ही चाहिए। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें आपको इतना ज्यादा करंट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, बट द मेन केस इज दैट कि हर एक बिजनेस अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो तो उसमें आपको पैन नंबर तो रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि आप विदाउट पैन तो आप टैक्स जनरेट मतलब आप टैक्स नहीं दे पाओगे, और करंट अकाउंट होना भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सो दीज आर द रजिस्टर